आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرہ سے باندھ لوں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ ترمذی۔ آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں۔ صاف ستھرا ماحولی صحت مند معاشرے کا ضامن، اپنی مدد آپ کے تحت ریاستی بوسرا و ارکان اسمبلی نے اپنے اطراف کے علاقوں میں کی صفائی و شجرکاری۔ ضلع ایم پی ٹی آر دن زبان پر قابو رکھے اور اناپ شناپ بولنے سے گریز کرے، ہمت ہے تو حلقہ آرمور سے انتخابات میں مقابلہ کرے۔ آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی۔ IIT طلبہ کو تیقن اور مدت کے اختتام پر کیٹرنگ ٹینڈر منسوخ کرنے اور نئے ٹینڈر طلب کرنے کا مطالبہ لے کر طلبہ کا پھر سے بنا کھائے احتجاج۔ ضلع سے کورونا کے خاتمے اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، ضلع کلکٹر کی عہدیداران کو ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر پرشانت ریڈی نے کہا کہ ہماری صحت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے اور ہمیں ہر اتوار کو 10 منٹ کے لیے اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے۔ موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو ذمہ داری سے کام کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ریاستی IIT و میونسپل وزیر KTR کی کال پر حیدرآباد میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر اپنے گھر کے اطراف کی صفائی کی۔ اربن MLA گنیش گپتا، DCB چیئرمین کوچرام بھاسکر ریڈی اور دیگر عہدیداروں نے پودوں سے گرے ہوئے پتوں کو ہٹایا اور پھولوں کے گملوں میں پانی نکال کر صاف کیا۔ اس موقع پر وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کہا کہ KTR کی کال کے مطابق انہوں نے اتوار کو اپنے گھر کے اطراف کی صفائی کی اور کہا کہ وہ ہر اتوار کی صبح 10 منٹ کے لیے اپنے گھروں کی گرد و نواح کو صاف کریں تاکہ موسمی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ گھر کے احاطے میں جمع پانی کی وجہ سے ڈینگو، ملیریا اور ٹائیفائڈ کے امکانات کے پیش نظر ہر کسی کو صفائی پر خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ کامرٹی ایڈیشنل SP اننیا نے کہا کہ پولیس کا بنیادی فرض جرائم پر قابو پانا اور لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ لوگ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور امن و امان برقرار رکھیں۔ کامرٹی ضلع کے بانسواڑہ قصبے کے سنگمیشور کالونی میں محکمہ پولیس کے زیر اہتمام ایک کمیونٹی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ قابل ازیں ایڈیشنل SP اننیا اور DSP جے پال ریڈی کی نگرانی میں اس کالونی میں گھر گھر تلاشی لی گئی۔ چوری اور دیگر جرائم پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بغیر کاغذات کی 40 گاڑیاں ضبط کر لی گئی، بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی نشاندہی کی گئی اور متعلقہ دستاویزات کی جانچ کی گئی۔ غیر قانونی نمبر پلیٹس والی گاڑی چلانے والوں کے لیے آگاہی۔ اس کے علاوہ دیگر ریاستوں سے آنے والوں اور بانسواڑہ میں رہنے والوں کی مکمل تفصیلات درج کی گئی۔ اس کے بعد کالونی کے مکینوں کے ساتھ کمیونٹی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل SP نے کہا کہ عوام پولیس کے ساتھ تعاون کرے تو جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکانات نامعلوم افراد کو کرائے پر نہ دیے جائے اور مشکوک افراد کا شک ہونے پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اس پروگرام میں کئی پولیس عہدیداران نے شرکت کی۔
టీంలు కారు కటాఫ్ టీంగా విభజించి ఇంకా సెర్చ్ కొనసాగుతూ ఉంది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి పత్రాలు లేని సుమారు ఒక 40 వెహికల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. వాటిని అన్ని కూడా వెరిఫై చేస్తాము. ప్లస్ ఇల్లీగల్గా లిక్కర్ అమ్ముతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఇక్కడ అన్ని చాలా స్టేట్ల వాళ్ళు ఇక్కడ నివసిస్తారు. వాళ్ళు ఏ స్టేట్ చెందిన వాళ్ళు, ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు, ప్లస్ వాళ్ళ డాటా కూడా కొంత తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్దర్గా ఇవన్నీ కూడా ప్రమోట్ చేసి అసాంఘిక చర్యలకు పాల్పడకుండా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం, ప్లస్ ఈ పత్రాలు సరిగా లేని వాహనాలని సీజ్ చేయడం. చాలా వెహికల్స్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ఉన్నాయి, వాటన్నీ కూడా ఆర్టీఓకి मरकजी और रियासती हुकूमतें बजट में तालीम के शोबे में कटौती करके निजाम तालीम को तबाह कर रही है। पीडीएसयू के रियासती जनरल सेक्रेटरी महेश ने इल्जाम लगाया। इन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के तहफ्फुज़ के मुतहर्रिक हो जाए, वरना तालीम में दुश्मन पॉलिसियों को रोके। पीडीएसयू जिला कमेटी के जनरल बॉडी का इजलास शहर की कोट गली में वाक़ एनआर भवन में मुनक़िद हुआ। सबसे पहले यूनियन जिले के जनरल सेक्रेटरी गौतम कुमार ने पीडीएसयू परचम कुशाई की। आईएफटीयू सिटी सदर एलबी रवि ने पीडीएसयू की तारीख पर रोशनी डाली। इस मौके पर शोबे तालीम के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पीडीएसयू के रियासती जनरल सेक्रेटरी महेश ने बरसरे इख्तियार हुकूमतों पर बजट में कटौती करके अवामी तालीम को मुतासिर करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वेलफेयर हॉस्टल, स्कूलों और कॉलेजों की इमारतें खस्ता हाल और बारिश होने पर तातीलात का ऐलान करने की हालत ज़ाहिर। गरीब तलबा के लिए आला तालीम मसला बन गई। स्कूलों को शुरू हुए 2 माह होने के बावजूद निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म की अदम फ्राहमी हुकूमत की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। సమావేశానికి విద్యార్థులు జిల్లా వ్యాప్తంగా నలుమూల నుంచి వచ్చేసిన విద్యార్థులు ఈరోజు విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం వ్యతిరేకంగా పరిష్కారం కోసం విద్యార్థి సమస్యల పోరాటం నిర్వహించడం కోసం ఈ జనరల్ బాడీ సమావేశం ఉపయోగపడుతుందని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యారంగ సమస్యలు ఎక్కడ వేసిన వంగులు అక్కడే ఉన్నట్టు చందంగా ఈరోజు తయారైన పరిస్థితి ఉంది. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై 2 నెలలు గడుస్తూ ఉన్నా కూడా ఈరోజు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ లేదంటే యూనిఫామ్స్ కానీ అందించిన దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ఉన్నాడు. ఇంకోవైపు జూనియర్ కాలేజీలో, డిగ్రీ కాలేజీలో సమస్యలతోనే విద్యార్థులు సతమతమైన పరిస్థితి ఉంది. 4,237,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు స్కాలర్షిప్ రూపాయన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో విద్యార్థులకి బాకీ పడి ఉన్న కేసీఆర్ ఇంతవరకు పెండింగ్లో నుండి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ను విడుదల చేయకపోగా ఇంకోవైపు ఉప ఎన్నికల కోసం లేదంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడానికి आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद, चीफ मिनिस्टर केसीआर, वजीर केटीआर और एमएलसी पर तनकीद करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने खबरदार किया कि गैर अखलाकी तबसरा करने वालों की रुकने पार्लियामेंट अरविंद को सबक सिखाया जाएगा। आरमूर के एमएलए और त्रासा पार्टी के जिला सदर जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के निकाल गाँव का दौरा किया और कई पेशरफ्त की प्रोग्रामों में शिरकत की। गांव में तरक्याती काम मुकामी अवामी नुमाइंदों के ताउन से शुरू किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए जीवन रेड्डी ने एमपी अरविंद को फर्जी फ्रॉड और फर्जी करार देते हुए तनकीद की। एमपी अरविंद एक साइको है। इस पर इल्जाम है कि वो नशे का आदी है और हमेशा नशे में बात करता है। 2017 में जब अरबी मामरपल्ली में पुल की मंजूरी दी गई थी तब एमपी अरविंद भी नहीं थे। इन्होंने कहा कि वो आरमूर हल्के की तरक्की के लिए 3,000 करोड़ रुपए लाए। रुकन असेंबली मुंतखब होने वाले अरविंद कितने फंड्स लाए? इन्होंने रुकन असेंबली को चैलेंज किया कि अगर इनमें हिम्मत है तो आइंदा इंतखाबात में इनके खिलाफ आरमूर में मुकाबला करें। इस प्रोग्राम में कई अवामी नुमाइंदे, टीआरएस कायदे और दीगर भी मौजूद थे। 2017లో నిజామాబాద్ అడవి మాడిపల్లిలో బ్రిడ్జి తెచ్చింది నేను, ఆర్మూర్లో బ్రిడ్జి తెచ్చింది నేను, పంచగోడ బ్రిడ్జ్ తెచ్చింది నేను, సిద్దులగుట్టకు 10 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది నేను. తీసుకొచ్చి 2018 తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి గెలిచిన తర్వాత నేను ఇచ్చిన అంటే జీవో ఎప్పుడు వచ్చింది మా విలేకరులకు తెలియదా? ఇలా వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ నేను తెచ్చి వాడు తెచ్చినట్టు నడుతుందా? మందికి పుట్టిన రోజులు నాకు పుట్టినని చెప్పుకుంటుంది నిజామాబాద్ ఆర్మూర్లో. నీకు దమ్ముంటారా నా మీదకి పోటీకి రా, నేనే నిన్ను ఎదుర్కొంటా, నిన్ను ఓడిస్తా, నీ రాజకీయ జీవితం క్లోజ్ చేస్తా అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. కానీ నేను చాలా మొండోని, ఎర్రజొన్న రైతులకు డబ్బులు ఇప్పించిన మొండోని, పంచగోడ బ్రిడ్జిని తీసుకొచ్చిన మొండోని,
నిజామాబాద్ నుంచి ఆర్ముకు రోడ్ వేయించిన మొండోని 130 కోట్లతో 100 పడకల ఆసుపత్రి తీసుకొచ్చిన మొండోని, ఆర్టీసీ బైపాస్ రోడ్ వేయించిన మొండోని, ఆలూరు బైపాస్ రోడ్ వేయించిన మొండోని, నిజామాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ దాకా 120 కోట్లు తీసుకొచ్చిన మొండోని, నందిపేట బైపాస్ రోడ్ వేయించిన మొండివాన్ని, बेलमल बाईपास रेసిన మొండివాని। शहर में हफ्ता कबल हुई शदीद बारिश के बाद शहर में सड़कें तबाह और कई मुकामात पर अवाम को दुश्वारियां। बल्दिया व मुंतखबा नुमाइंदे व ओहदेदारान की तवज्जो जरूरी। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माहना इजलास के कई माह तक अदम इनेकाद से बल्दी डिवीजनों और शहरी सतह पर दरपेश मसाइल की एकसुई में गैर जरूरी ताखिर हो रही। काबिले गौर बात यह है कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर मुंतखबा बॉडी का 2.5 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन 2.5 साल अरसे में बल्दिया इजलास को उंगलियों पर गिना जा सकता है। 60 डिवीजनों पर मुश्तमिल निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माहना इजलास का क्यों इनेकाद अमल में नहीं आ रहा, इस पर अवाम में तशवीश बढ़ती जा रही। अवाम का सवाल है कि क्या मेयर और कॉरपोरेटर्स इस कदर मसरूफ है कि इन्हें बल्दिया इजलास के इनेकाद का वक्त नहीं मिल रहा, या फिर 60 डिवीजनों के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए फिक्र नहीं। हालिया बारिश के बाद शहर के तमाम बल्दी डिवीजनों का जायजा लेने पर बेशुमार मसाइल दिखाई दे रहे हैं। अवाम मुंतखबा कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी से नाला दिखाई दे रहे, क्योंकि बारिश के पानी की निकासी, ड्रेन की सफाई, कचरे की रोजाना निकासी, मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव जैसे मामूली मसाइल हल करने में भी मुंतखबा कॉरपोरेटर्स नाकाम दिखाई दे रहे। मामूली मसाइल को अवाम कॉरपोरेटर्स के बजाय प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए कलेक्टर से रुजू करने पर मजबूर है। कॉरपोरेटर्स के इल्म में लाने के बाद भी कई दिन तक ड्रेन और सड़कों की सफाई, बारिश के पानी की निकासी अमल में नहीं आ रही, मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव नहीं किया जा रहा। इंतहाई अफसोस की बात है कि शहर के तिजारती इलाकों के अलावा कई मुकद्दस जगहों के नस्ब भी कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। बल्दिया के मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदार और सैनिटरी मुलाजमीन माहाना भारी तनख्वाहें हासिल कर रहे, वो मुंतखबा कायदीन का कहना मानने के लिए आमदा दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बल्दी डिवीजनों में मसाइल बढ़ते जा रहे। शहरी सतह पर मसाइल का जायजा लेने पर टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इख्तियार वाली निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 2.5 साल अरसे में कोई काबिल जिक्र तरक्याती काम नहीं किया गया। अवाम का सवाल है कि टीआरएस और मजलिस को शहर की तरक्की व तब्दीली के लिए आखिर कितना वक्त चाहिए। अवाम में ये सवाल गश्त कर रहा कि कहीं टीआरएस और मजलिस की बरसर इख्तियार बॉडी साबिका कांग्रेस पार्टी की रविश पर गामजन तो नहीं। कांग्रेस दौर हुकूमत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद का माहाना इजलास का इनेकाद खौफ बनकर रह गया था। टीआरएस और मजलिस दौर हुकूमत में भी कई माह तक बल्दिया का इजलास मुनाकिद नहीं किया जा रहा। हालिया बारिश के बाद बेशुमार मसाइल है, लेकिन बल्दिया का इजलास मुनाकिद करते हुए जायजा लेने की मुंतखबा कायदीन की तौफीक नहीं होती। बल्दी डिवीजनों और शहरी सतह पर तरक्याती इक़दामात की अंजाम दही के लिए हर माह बल्दिया इजलास में तबादला ख्याल करते हुए मंजूरी अमल में लाने की जिम्मेदारी मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स पर आयद होती है। साथ ही माहाना भारी तनख्वाहें हासिल करने वाले ओहदेदारों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और इनसे काम लेना मुंतखबा कायदीन की जिम्मेदारी है। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का पीर से होगा आगाज। तलबा के लिए इम्तिहानी मराकिज पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। इम्तिहानी मराकिज के अतराफ दफा 144 नाफिज। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने बताया कि इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में साले अव्वल दुवम के मिन जुमला 15,310 तलबा शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि इम्तिहानात रोजाना 2 सेशन में रहेंगे, सुबह 9 तक 12 बजे पेपर 1 और दोपहर 2:30 तक 5:30 बजे पेपर सेकेंड रहेगा। 21 अगस्त को सेकेंड लैंग्वेज, 2 अगस्त को इंग्लिश, 3 अगस्त को रियासी, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, 4 अगस्त को रियासी, जोलॉजी, हिस्ट्री, 5 अगस्त को फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, 6 अगस्त को केमिस्ट्री, कॉमर्स, 8 अगस्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिज कोर्स, मैथ्स और 10 अगस्त को मॉडर्न लैंग्वेज और जियोग्राफी के इम्तिहानात होंगे।
इम्तिहानात के जिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 36 मराकज़ कायम किए गए। इन्होंने कहा कि तलबा व तालिबात को इम्तिहानी मराकज़ पहुँचते वक्त बसों की सहूलत मुहैया कराई जाएगी, जबकि इम्तिहानी मराकज़ में बर्क़ी सरबराही, पीने के पानी, वॉशरूम जैसी सहूलतें, आशा वर्कर से मेडिकल की सहूलत के इंतजाम किए जा रहे हैं। तलबा अपने हॉल टिकट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि इन इम्तिहानात के औकात कार में इन मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के पास पुलिस की जानिब से दफा 144 नाफिज रहेगा। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडियंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीब व अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडियंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाने और फौरन हल तलब व घरेलू मसाइल को हल करने और अवाम को मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखने के मकसद से ही लोक अदालत का इनेकाद 13 अगस्त को मुनक्किद होगी कौमी लोक अदालत। 13 अगस्त 2022 को कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसके लिए कोर्ट मजिस्ट्रेट अजय कुमार जाधव ने जुमा के दिन मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। इन्होंने बताया कि कौमी लोक अदालत का वक्फे से इनेकाद अमल में लाते हुए देरीना मुकदमात की एकसुई की जा रही। कौमी लोक अदालत के 100% नताइज बरामद हो रहे हैं और लोक अदालत से मुकदमात के फरीकैन इस्तेफादा करते हुए आपसी रजामंदी से एकसुई कर रहे। इस इजलास में एसीपी वेंकटेश्वरलू के अलावा कई सीआई, एसआईज और कोर्ट कांस्टेबल मौजूद थे। मजिस्ट्रेट अजय कुमार जाधव ने 13 अगस्त को मुनाकिद होने वाली कौमी लोक अदालत से इस्तेफादा करने की मुकदमात के फरीकैन से ख्वाहिश की। साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर को सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद जावेद अकरम का दौरा नई दिल्ली। एआईसीसी दफ्तर पर एआईसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी से की मुलाकात, मुबारकबाद। बहुत जल्द एआईसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी करेंगे निजामाबाद का दौरा। बीजेपी, टीआरएस व एमआईएम ने तेलंगाना की अवाम का इस्तेमाल किया, कांग्रेस फिर से हुकूमत बनाएगी, जावेद अकरम का इजहार। साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद जावेद अकरम ने नई दिल्ली का दौरा किया और एआईसीसी दफ्तर में एआईसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी से खुसूसी मुलाकात और रुकने राज्यसभा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और तेलंगाना में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मसाइल पर तफसीली बातचीत और मसाइल के हल के लिए कांग्रेस कायदीन से बातचीत करने का इजहार किया और तेलंगाना बिलखुसूस निजामाबाद व अतराफ के अजला का दौरा करने इमरान प्रतापगढ़ी ने जल्द निजामाबाद का दौरा करने का तयक़ुन दिया। इसी तरह जावेद अकरम ने साबिका एमपी मधु याशिकी गौड़ व दीगर से भी मुलाकातें की। आज न्यू दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने की अहम वजह हमारे आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब से मुलाकात करना था और उनको हमारी श्रीमती मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने जो हाल ही में राज्यसभा का मेंबर उनको मुंतखब किया, वो मुबारकबाद भी देने आए हैं। हम हमारे हरदिल अजीज़ कायद अली जनाब मधुगौड़ याशिकी साहब के कहने पर यहाँ पर दिल्ली आए हैं। दिल्ली आकर एआईसीसी ऑफिस में हमने इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मुलाकात की और हमने तेलंगाना के मुसलमानों के बारे में इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने हमसे पूछा तो हमने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को तमाम चीज़ें बताई और उनको हमने ये कहा कि आप जल्द से जल्द तेलंगाना में एक मरतबा आइए। तेलंगाना के मुसलमान आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए बेचैन हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा मैं बस जल्द 15 अगस्त या सितंबर के महीने में मैं हैदराबाद आऊँगा, तेलंगाना आऊँगा। आप तमाम लोग पूरे अक़लियती माइनॉरिटीज़ मिलकर आप लोग
एक बड़ा जलसा रखी है, उस जलसे से मैं मुखातिब करूँगा और तेलंगाना के तमाम मुसलमानों से ये अदबन गुजारिश करूँगा कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और TRS हुकूमत से जो आप लोगों ने उनके कहने पर, उनके वादों पर आप यकीन करते हुए 8 साल परेशानी उठाई, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कांग्रेस पार्टी आपकी मदद करेगी। कांग्रेस पार्टी को एक मरतबा हुकूमत में लेकर आइए। कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने का अगर किसी में दम है, खम है, ताकत है तो वाहिद पार्टी कांग्रेस जमात है। और हमारे जो तेलंगाना के जो मुस्लिम कायदीन हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन लोग भी तैयार है कि बीजेपी और TRS और मजलिस से मुकाबला करने के लिए। और तेलंगाना में बहुत जल्द कांग्रेस की हुकूमत आएगी। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा आप लोग बुनियादी काम कीजिए, आवाम के पास जाइए, अक़लियतों के पास जाइए, माइनॉरिटी के पास जाइए, मेजॉरिटी के पास जाइए, हिंदू भाइयों से भी मिलिए कि हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी जमात है। मेरे जलसे में हिंदू मुस्लिम सिख तमाम लोग, माइनॉरिटी का जलसा नहीं बल्कि तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जलसा होना है। मैं ज़रूर आऊँगा। 62 में तलबा ने फिर एहतजाज किया। इन्होंने रात का खाना खाए बगैर एहतजाज करते हुए कैटरिंग का लाइसेंस फौरी मंसूख करने का मुतालबा किया। ऐलान किया कि VC ने जो वादे किए हैं इन पर अमल किया जाए वरना लड़ाई की तैयारी करेंगे। हफ्ते की रात 62 के तलबा ने कैटरिंग के लाइसेंस को फौरी तौर पर मंसूख करने और नए लोगों के तकर्रुर के लिए दोबारा एहतजाज किया। वाज़ेह हो कि हाल ही में खराब खाने की वजह से कई तलबा बीमार पड़ गए थे। इस पस मंजर में इंचार्ज VC वेंकट रमना की तवज्जो दिलवाई की मियारी खुराक फराहम करने के लिए नए मैनेजर्स का तकर्रुर किया जाए, खाली आसामियों को पूरा किया जाए और दीगर मुतालबात हल किए जाए। इंचार्ज VC ने तलबा को यकीन दिलाया कि इसे 24 जुलाई तक हल कर लिया जाएगा। इन जमानतों पर अमल दरामद किए बगैर सेमेस्टर इम्तिहानात की तैयारी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इन तातीलात के बाद IT दोबारा शुरू हो गई। VC की तरफ से दी गई मोहलत के 6 दिन गुजरने के बाद भी मुतालिबात पूरे न होने पर तलबा ने हफ्ते की रात एक बार फिर इज्तिमाई एहतजाज किया, ये वाज़ेह करते हुए कि जब तक इनके मसाइल हल नहीं होते वो नहीं खाएंगे। वो रात 11 बजे तक बैठे रहे। इंचार्ज VC वेंकट रमना ने इस मामले की वजाहत देते हुए तलबा की दरख्वास्त के मुताबिक नए कम्युनिटी के लिए टेंडर बहुत जल्द पूरे करने का तयक़ुन दिया। जिले से कोरोना के खात्मे के लिए ओहदेदारान हर मुमकिन इक़दाम करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी। जिला निजामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिदायत दी कि कोविड से मुतासिर होने के लिए बचने के लिए बड़े पैमाने पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और पूरी तरह चौकसी इख्तियार करते हुए जिले के तमाम म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन के अमल को तरजीह दी जाए। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसमी बीमारियों को काबू पाने के लिए हर मंडल में घर घर सर्वे करते हुए मच्छर दानों का इस्तेमाल करने के लिए शोर बैदार करें। खस्ताहाल कोर्ट के पुराने बस स्टैंड को हटा दी। CPI मॉडल जनरल सेक्रेटरी विठल गौड़ ने कहा कि नया बस स्टैंड बनाया जाना चाहिए। इन्होंने खबरदार किया कि अगर मुसाफिरों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम ना की गई तो वो अपनी जद्दोजहद करेंगे। कोटगी मंडल मुस्तक़बिल में पुराने बस स्टैंड को हटाकर नए बस स्टैंड की तामीर की CPI पार्टी के ज़ेरे एहतमाम धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पार्टी मंडल के जनरल सेक्रेटरी विठल गौड़ ने कहा, बस में बाकायदगी से सफर करने वाले मुसाफिरों को बस स्टैंड पर बहुत कम सहूलियात का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड खस्ता हालत में पहुंच जाने की वजह से मुसाफिरों को खड़े रहना पड़ता है। गर्मी और बरसात के मौसम में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि बस स्टैंड में कई एक शदीद परेशानी का सामना है। अवामी नुमाइंदे जिन्होंने अवाम के लिए काम करना है वो अपने मुफादात पर मरकूज है और अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। इन्होंने कहा कि बस स्टैंड का अहाता छोटे ताजिरों के लिए रुकावट बन गया है। स्पीकर पोचराव ने पहल करते हुए नया बस स्टैंड बनाने और लोगों के मसाइल हल करने को कहा, वरना हम CPI पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मरहलावार तहरीक चलाएंगे। इस प्रोग्राम में CPI कायदीन नाला गंगाधर, राजू, गुंडाला रामू वो दीगर भी मौजूद थे। పాత బస్టాండ్ తొలగించి నూతన బస్టాండ్ నిర్మించాలని CPI డిమాండ్ చేస్తున్నది. ఎందుకంటే ఈ బస్టాండు పాతది అయిపోయింది, కొత్త బస్టాండ్ నిర్మించాలా, అందులో మూత్రశాలలు కూడా నిర్మించాలి. ఎందుకంటే కోటగిరిలో ఇంత పెద్ద
గౌరవ శ్రీ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు సభాపతి గారు దత్తత తీసుకున్న గ్రామంలో ఒక బస్టాండ్ లేకపోవడం చాలా శోచనీయం. ఎందుకంటే ప్రయాణికులు పెరుగుతున్నారు. మహారాష్ట్ర ప్రయాణికులు కోటగిరి పబ్లిక్ ప్రజలు అందరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలా, బోధన్ కానీ నిజామాబాద్ వెళ్ళాలి. కానీ వాళ్ళకి తీరా చూస్తే ఈ బస్టాండ్ లేక చాలా చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు. కనీసం మహిళలకు మూత్రచాడ లేకపోవడం చాలా సిగ్గుచేటు. మరి లోకల్లో ప్రజలతో ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు కనీసం దీని మీద దృష్టి సాధించగచ్చరు. వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యాపారాలకి పరిమితమవుతారు తప్ప ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి रियासती म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वजीर केटीआर की हिदायत के मुताबिक हरिद्वार की सुबह 10 बजे आरमूर टाउन में 10 मिनट का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने शहर का दौरा किया और लोगों में माहौलियाती सफाई के बारे में शौर बेदारी लाई। आरमूर टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने मुकामी काउंसलरों और दीगर ओहदेदारों के साथ वार्ड का दौरा किया। सबसे पहले 14वें वार्ड में फूलों के गमलों, कूलर, पानी के बर्तन, नारियल के गोले और टायरों में खड़ा पानी निकाला। कॉलोनियों में घरों के अर्ध खड़े बारिश के पानी को साफ करने का मशवरा दिया गया। कमिश्नर ने कॉलोनी वालों की आवाम को समझाया कि अगर वो हरिद्वार को अपने घर के अतराफ को अपना 10 मिनट के लिए साफ करे तो वो मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और दीगर जहरीली बुखारों से बच सकते हैं। తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని మున్సిపాలిటీలలో ఆదివారం రోజు 10 గంటలకు 10 నిమిషాల కార్యక్రమము చేపట్టడం జరుగుతుంది. మరి ఇందులో భాగంగానే గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారము మేము 4-5 రోజుల నుండి డైలీ ఇంటింటి సర్వే, ఫీవర్ సర్వే మరి ఇంటింటి సర్వే కూడా చేస్తున్నాము. అందులో ముఖ్యంగా ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే భారీ వర్షాలతోటి ఎక్కడంటే అక్కడ నీరు నిల్వ ఉండడంతో దోమలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున వారికి అవగాహన కల్పించడము, వారి ఇంటి చుట్టూ పరిసరాలు కూడా నీరు నిలకడ లేకుండా చూసుకోవడము, మరియు వాళ్ళ ఇంటి పరిసరాల్లో లోపట్నే వాళ్ళకు తెలియకుండానే కొన్ని వాటర్ స్టాగ్నేటెడ్ ఉంటాయి. అవి వారికి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా టైర్లు ఉంటాయి, కూలర్లలో వాటర్ అట్లనే యూజ్ చేసుకోకుండా इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साफ सुथरा माहौली सेहतमंद मुआशरे का ज़ामिन अपनी मदद आपके तहत रियासती बुजरा व अरकान असम्बली ने अपने अतराफ के इलाकों में की सफाई व शजरकारी। जिला एमपी टीआर ने जुबान पर काबू रखे और अनाप शनाप बोलने से गुरेज करे। हिम्मत है तो हल्का आरमूर से इंतखाबात में मुकाबला करे। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। IIT तलबा को तयक्कुद और मुद्दत के इख्तिताम पर कैटरिंग टेंडर मंसूख करने और नए टेंडर तलब करने का मुतालबा लेकर तलबा का फिर से बिना खाए एहतजाज। जिले से कोरोना के खात्मे और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। जिला कलेक्टर की ओहदेदारान को हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।